Okay, good morning to all of you, and as usual, welcome back. So here we go. I hope all charged up for the new session. Some more on the entry gate. All these facilities are there in. Okay, good morning messages coming now. Jay Goyal, Karthik, Manan. Actually, we have more or less covered the basic concepts of current electricity. थोड़ा सा एक दो चीजें पूछ रहे थे कल. कल तो एकदम fag end में discussion हुआ था तो like we couldn't manage to do all of them. Maybe एक आध छोटे मोटे चीजें आज कर लेते हैं, then probably it would be time to shift to the next chapter. है ना? As per the calendar, if I go as per the calendar, ठीक है ना? तो दर्द हो रहा है, वैसे तो कुछ नहीं है. एक सेकंड, एक बात तो म्यूट करना पड़ेगा लग रहा है. To start off. हाँ तो as per the calendar, if I go, ठीक है ना? If I go as per the calendar, then we are supposed to finish by around September 30th. हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे हो तो I don't know. ठीक है ना? 2-4 दिन आगे पीछे हो तो I don't know. But as such, तो we are supposed to complete by September 30th. So 2 months we have covered what, around 3 chapters, है ना? थोड़ा सा स्टार्टिंग का स्लो होता है, उसके बाद तो the chapters are slightly smaller in length, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है. स्टार्टिंग में ही थोड़े से टॉपिक ज्यादा है ना? चलो, I think now it's time to start. So Vedanta has asked a very important question and that is, क्या इस बार हम लोग को हॉलीडे मिलेगा? Well, I'm sure everybody knows here which holidays is he talking about, and that is the summer holidays. देखो, my guess is कि summer holidays तो मिलना चाहिए, in the sense कि except for few days. Good morning, sir. ठीक है ना? So let's hope कि there is no break to the break. ठीक है ना? Dhruv has another interesting question, and that is a marker कहाँ से ला रहे हो? Actually, interestingly, you know what? I had a 1 or 2 box of markers. क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं एक नया ऑफिस खोल रहा था, तो लाइक उसके लिए कुछ चीजें जरूरत था, तो वो मैं घर में लाया था कि मैं 2-4 दिन बाद नेक्स्ट जब जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि रोज जा नहीं पाता था, तो लाइक और भी काम में बिजी होता था, तो मैं उनको ले जाऊंगा ऑफिस. तो बाई चांस मेरे घर में रह गए बहुत सारे मार्कर्स. इनफैक्ट देखो, अभी मैं दिखाता हूँ. ये देखो, ये है मेरे कलेक्शन ऑफ मार्कर्स इस वक्त. ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये देखो और इतने सारे हैं. So there is no dearth of markers at least. But that was a more of a coincidence. In fact, school में और भी 2-4 जनों को परेशानी हुआ था. Even against the lockdown, also some of them actually went to the school also. तो कुछ लोग स्कूल गए थे मार्कर और चौक और बोर्ड लाने के लिए. जैसे मैं तो बोर्ड नहीं ला सकता, तो मैं तो छोटे-छोटे बोर्ड में मैनेज कर रहा हूँ. चलो, anyway, today we will talk about something which is a little different. Okay, somebody says, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये तो आप मार्कर की दुकान ही खोल दो इस वक्त. है ना? चलो, anyway, let's start with the concept called as now this is a little different. Different in this sense कि देखो, अभी तक हम लोग सेल के बारे में क्या जानते हैं? What we know about a cell is that a cell provides an EMF. Cell does not provide a voltage, mind you. अब सेल का जो EMF है, वो या उसका पार्ट या उससे एड ऑन होके एक नेट वोल्टेज बनता है. That is because of the overall influence of the circuit. तो सेल के पास जो है वो है EMF, और जो प्रोवाइड कर रहा है वो है वोल्टेज. तो V is equal to E minus IR अगर नॉर्मल मोड में है, और अगर चार्जिंग मोड में है तो V is equal to E plus IR. They have read all those things. यानी हम सेल को एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह सोच रहे हैं.
there is another way of looking at a cell and that is called as a current source. ठीक है, अभी current source क्या होता है? Let's look at that. So what we are looking at now is what is called as a current source. अब current source क्या है ना? Now see current source, अच्छा voltage source क्या है? यानी सेल के पास जो चीज फिक्स है वो क्या है? तो अभी तक हम लोग जानते थे that the fixed parameter of a cell is EMF. अभी तक ये जानते थे ना? लेकिन अगर हम कंडीशंस को कुछ इस तरीके से बनाएं, in that case even the current through a cell can also be a fixed quantity. now you might say ये कैसे हो सकता है? करंट तो सर्किट पे डिपेंडेंट है, यानी करंट तो सर्किट पे डिपेंडेंट है, किसी एक्सटर्नल सर्किट कैसे है, उसमें रेजिस्टेंस कैसे है या अदर पैरामीटर्स हैं. बिल्कुल बात सही है, बट देयर इज अ कंडीशन इन व्हिच अ सेल कैन एक्ट एज अ करंट सोर्स आल्सो. सो लेट्स लुक एट दैट. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे शायद चीज क्लियर हो जाएगा. जैसे सपोज एक सेल है 10 वोल्ट का, तो ध्यान से देखो, और मान लो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है सपोज 10,000 ओम. ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लेट्स से 1 to 5 ओम होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस दैट वी यूज, सपोज ये सारा सपोजिशन है, ध्यान रखना, वो सपोज 1 to 5 ओम के बीच में. ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो रहा है कि व्हाट इज द करंट इफ यू यूज 1 ओम will be equal to 10 by 10,000 1. क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ही 10,000 है, 1 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो 10 by 10,000 1. अब उसको कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा क्या है एग्जैक्ट. और एक हो गया I फॉर 5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, करंट ही आ गया. और अगर 5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करें तो दैट केस क्या होगा, करंट 10,005. दैट्स हार्डली डिफरेंट, दैट इज हार्डली डिफरेंट. क्योंकि 10 by 10,001 क्या होगा, वो जो भी मिली एम्पेयर में कर दूंगा इसको मैं, या इवन माइक्रो एम्पेयर में भी कर सकता हूँ. बट द पॉइंट इज दैट इसको एग्जैक्ट कर लें, या एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन तो कर ही लें, है ना, तो दैट एक फेयर बिट ऑफ आइडिया बन जाए, है ना. तो वैसे तो बाइनोमियल से ही करते हैं, बट मैं टाइम वेस्ट ना करके इसको वैसे कर देता हूँ. 10 डिवाइड बाय 10,001. अगर मैं इसको माइक्रो एम्पेयर में कर या मिली एम्पेयर में करता हूं तो आता है 99.9 मिली एम्पेयर. यानी इस केस में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 99.99 मिली एम्पेयर. ठीक है, और इसमें आ जाएगा इसमें आ रहा है 99.95 मिली एम्पेयर. अब बताओ क्या फर्क पड़ता है, 99.95 मिली एम्पेयर. दैट मीन्स अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक भी जाता हूं, दैट इज द कांस्टेंट, यानी even when the external resistance varies from 1 to 5 ohm, current is approximately 99.9 milliampere. Now that is the point that I'm trying to drive home. ठीक है ना. Sorry, microampere. ठीक है, so the point that I'm trying to drive home is that नहीं, अगर मैं वैसे करूंगा तो 999.5 आ रहा है, एक डेसिमल गलत आ रहा है. तो यानी कहने का मतलब क्या है कि करंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इवन दो आई एम चेंजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 ओम टू 5 ओम, यानी 5 गुना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कर दिया, फिर भी देखो करंट फिक्स्ड है. नाउ दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ करंट सोर्स. यानी इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वेरी भी करते रहोगे तो भी क्या होगा, करंट का वैल्यू लगभग फिक्स हो जाता है. ऐसे अलग अलग तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट सोर्स बना सकते हैं. जैसे अभी आया है 999 माइक्रोएम्प, कल को कुछ और कॉम्बिनेशन यूज करके जैसे 10 वोल्ट की जगह कुछ और यूज कर लो, इसके जगह कुछ और, इसके जगह कुछ और. बट देन यू माइट से कि करंट फिक्स रहता कब है, तो इज देयर सम काइंड ऑफ जनरल पैटर्न. तो इफ आई आस्क यू नाउ, लेट्स से, है ना, नाउ लेट्स से इफ आई आस्क यू करंट सोर्स एक सेल कब बनेगा, सो नाउ यू कंक्लूड
एक सेल करंट सोर्स कब बन सकता है या कब बनता है, या उसका बनने का पीछे क्राइटेरिया क्या होगा, सिचुएशन कब होगा, वो बताओ। ओके ठीक है। जय गोयल has immediately made a comment. अभी मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ. At least let me see if others can also answer this, or others would answer this. ओके ठीक है. सक्षम ने भी, कालीराम ने भी करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है. ओके ठीक है. नाउ मोर आंसर्स आर कमिंग अप. प्रणय ने भी आंसर दे दिए. मदन टंगवाल, धैर्य गुप्ता ने भी अपने तरीके से आंसर दिए है. ठीक है. मैथमेटिकल करके सुपर हाई इंटरवेंशंस. चलो ठीक है. आई थिंक नाउ मोर और लेस पीपल हैव कंक्लूडेड इज दैट एक सेल करंट सोर्स की तरह तब बिहेव करेंगे, करंट सोर्स की तरफ या तरह तब बिहेव करेंगे व्हेन so the cell acts as current source if small r is very large compared to capital R. तो ऐसे सर्किट को या ऐसे सेल को हम बोलेंगे करंट सोर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल थोड़ा सा हेराफेरी करा भी जाए, in that case भी करंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट. ठीक है. दैट्स द आइडिया. मैं अनिरुद्ध को ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा हूं, बट संभव नहीं हो पा रहा है. आई डोंट नो व्हाई. चलो व्हाटएवर, देखता हूं. माइट रीट्राई दैट केस. हाँ, तो जो मैं कह रहा था, अच्छा तो इसके बाद कल बात कर रहे थे, वैसे तो इतना कोई जरूरी नहीं है, बट हम कल बात कर रहे थे अबाउट नोड एनालिसिस कि अगर हम किसी नोड के थ्रू कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं तो इन दैट केस क्या एनालिसिस कर सकते हैं, है ना. तो देखो नोड एनालिसिस में क्या होता है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट ए न्यू टेक्निक. इट इज टोटली बेस्ड ऑन किर्चॉफ्स लॉ. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सर्किट एनालिसिस का एक ही लॉ होता है और वो होता है किर्चॉफ्स लॉ. Again, I will repeat my words. There is only one law, and that is Kirchhoff's law. But उसी को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कंटेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में मैनिपुलेट करके साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, इनफैक्ट खास करके इंजीनियर्स, क्योंकि सर्किट के एनालिसिस बहुत सारे इंजीनियर्स ने किया था, तो इंजीनियर्स ने जो है उसी को मैनिपुलेट करके अलग-अलग कंटेक्स्ट में डाल के अलग-अलग तरीके से कंक्लूजन्स किए थे. एंड अकॉर्डिंगली देयर आर मेनी थ्योरम्स. एक्चुअली देयर आर मेनी. मतलब अगर इंजीनियरिंग करोगे इलेक्ट्रिकल में, तो दैट केस यू विल नो अबाउट एटलीस्ट इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आल्सो, कि इलेक्ट्रिकल का एक कोर्स तो करना ही पड़ता है हर डिपार्टमेंट को, क्रॉस डिपार्टमेंट के भी ब्रांचेस होते हैं. तो लाइक यू विल टॉक अबाउट थेवेनिन, यू विल टॉक अबाउट नॉर्टन, यू विल टॉक अबाउट मेश एनालिसिस, है ना. तो कई सारे हैं. लेट्स लुक एट ओनली okay, now Jay Goyal has asked a question also, counter question, I mean almost on this current. So that is लेकिन अगर ईएमएफ को हाई कर दें और सारे रेजिस्टेंस को लो कर दें तो भी तो करंट सोर्स बन सकता है ना, तो भी नहीं चलेगा एज लॉन्ग एज दिस इज वैलिड. देखो ईएमएफ से क्या होगा, ये वाला जो करंट 999 माइक्रो एम्पेयर है, तो खुद सोच कर अगर ये 10 की जगह 100 करोगे तो ये 99.9 माइक्रो एम्पेयर होगा. 1000 कर दोगे तो 9.99 माइक्रो एम्पेयर होगा. 10,000 कर दोगे तो सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना, मतलब वो मिली एम्पेयर की तरफ जाएगा. तो मैंने फिगर्स गलत बता दी, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यानी जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे इन दैट केस क्या होगा, ये माइक्रो एम्पेयर में बढ़ता रहेगा और उसको हम धीरे धीरे मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देन इट वुड मेक मोर सेंस. इवन अभी भी जो है इसको 0.999 मिली एम्पेयर कह सकता हूँ, बट आई वाज नॉट डूइंग दैट. तो देयरफॉर सेल का वोल्टेज उतना मेजर रोल नहीं प्ले करता. सेल का वोल्टेज चाहे कुछ भी हो जाए, स्मॉल आर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू कैपिटल आर करोगे तब जाके कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट इन द वेरिएशन ऑफ कैपिटल आर, इफ दैट वेरिएशन इज वेरी स्मॉल. अब अगर मान लो कैपिटल आर का वेरिएशन में 1 से 5000 ओम कर दूंगा, 1 से लेके 5000 ओम, तो देन इट वोंट बी अ करंट सोर्स, क्योंकि 5000 ओम के टाइम जो करंट होगा और 1 ओम पे जो करंट होगा वो सेम थोड़ी होगा या सिमिलर थोड़ी होगा. So as long as this is satisfied, whether EMF is low or high, doesn't matter. The only criteria is this. इसलिए देखो EMF के बारे में कोई कमेंट नहीं किया. हाँ, अब एक पता प्रॉब्लम क्या आता है. सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ना माइक्रो एम्पेयर में या मिली एम्पेयर में करंट, मुझे एम्पेयर में करंट चाहिए, एम्पेयर में. इन दैट केस फिर हमें हायर वोल्टेज सेल लेना. बट ये वाला क्राइटेरिया फॉर ए करंट सोर्स,
still same रहेंगे, and that is small r will be very large compared to capital, and that is the only condition. EMF पे कोई condition, ठीक है ना? That's the point. Okay, let's proceed now. हाँ, तो जो मैं कह रहा था नोड एनालिसिस का एक एग्जांपल करते हैं पहले. तो पहली बात तो as I said, node analysis is nothing new actually. ठीक है ना? Node analysis is nothing new. It is based on Kirchhoff's. कैसे? सपोज मैंने एक सर्किट ले लिया, इस तरीके से सिंपल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से ठीक है, ये मान लो 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये सपोज 15 वोल्ट, ठीक है ना? और एक रेजिस्टेंस कहीं और लगा देता हूँ, चलो यहीं की लगा देता हूँ, यहाँ छोड़ो, यहाँ लगा 1. अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा ना, जहां पे जंक्शन है वहां पे कोई एक जगह पे कोई नोड ले लो जहां पे जंक्शन, ठीक है, और उसको हम लोग कुछ भी वोल्टेज असाइन कर सकते हैं वैसे तो, पर आई थिंक कन्वीनियंट है 0 वोल्टेज असाइन करना. तो लेट्स टेक दिस एज द नोड. तो अगर मैं इसको नोड लेता हूं, ठीक है ना, और ये भी एक नोड है ना, सो देयर आर मल्टीपल नोड्स हैं. तो सारे लेने का जरूरत नहीं पड़ता. जनरली क्या होता है, एक आध नोड लेके कई बार थोड़ा सर्किट बड़ा भी होता है, थोड़ा फिर भी सिंपल है ना, बट कई बार बड़ा भी होता है. तो इसको हमने अर्थ कर दिया. आई माइट से अर्थ तो क्वेश्चन में था नहीं. देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई एक पॉइंट को अर्थ करते हो तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि उस अर्थ से नॉर्मल मोड में करंट जाएगा, राइट? तो देयरफॉर इट डजंट मैटर मच. और जो है अर्थ करने का सिग्निफिकेंस क्या हो फिर ना, वो पॉइंट 0 वोल्ट. सो यू माइट से नहीं हो तो 0 वोल्ट तो पहले शायद था नहीं, तो अब तो अगर 0 हो गया तो उससे सर्किट चेंज नहीं हो गया. देखो सर्किट का ड्राइवर 0 वोल्ट नहीं है, सर्किट का ड्राइवर है सेल. तो सेल का काम क्या है समझो. सेल का काम ये कि जैसे मान लो अगर ये पॉइंट 4 वोल्ट पे है और मान लो एक सेल 10 वोल्ट का लगाऊंगा, तो डिपेंडिंग या थोड़ा सा मैं पोलाइट वैल्यूज बदल रहा हूं. सपोज ये 15 वोल्ट का है, 15 वोल्ट, और मान लो एक सेल उसके सामने रख दिया 5 वोल्ट. तो अगर मैं 15 से स्टार्ट करूंगा तो सेल क्या करेगा, 5 वोल्ट या तो बढ़ाएगा या तो 5 वोल्ट घटाएगा. यानी इस सेल के थ्रू जब जाऊंगा और मैं दूसरे पॉइंट पे पहुंचूंगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करके, ये 15 वोल्ट ध्यान रखना, तो इन दैट केस दूसरा वाला पॉइंट या तो 10 पे होगा या तो 20 पे होगा. क्यों? क्योंकि 15 प्लस 5 हो जाएगा या तो 15 माइनस 5 होगा. लेकिन जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है. तो क्या पोटेंशियल है हार्डली मैटर्स. अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, ये जो पॉइंट मैंने लिया इसको 15 की जगह मैं अब 0 वोल्ट कर देता हूँ, मींस अर्थ कर देता हूँ. तो इन दैट केस क्या होगा, वो जो दूसरा पॉइंट है वो या तो +5 हो गया तो -5 हो. लेकिन करंट के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से क्रिएट नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सेल के जरिए. तो देयरफॉर इट डजंट मैटर. कई बार सवाल आता है माइंड में, दैट आपने तो क्वेश्चन को बदल दिया, आपने तो यहाँ पे अर्थ करके जो है उसका वोल्टेज बदल दिया. मैं कह रहा हूँ अर्थ छोड़ो, तुम कुछ भी वोल्टेज ले लो, 6 वोल्ट लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 6 लेके करना क्या, अननेसेसरी क्यों एक नंबर और ऐड करके हम अपना वो बढ़ाए. मतलब इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को हम 0 वोल्ट लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज 0. अगर एक पॉइंट 0 वोल्ट ले लिया तो कई बार कुछ पॉइंट्स के वोल्टेज उससे पता चल जाता है, कई बार हमेशा नहीं भी पता चलता. जैसे मैं एक बताता हूँ, अगर ये 0 वोल्ट होगा तो ये क्या होगा, ये 12 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट होगा. क्यों? ये देखो 0 से स्टार्ट करके 10 वोल्ट, लेकिन इसका पोटेंशियल नहीं निकला क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस भी. अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये भी पोटेंशियल पता चल जाता मुझे कितना ना, 15 वोल्ट ये वाला. लेकिन अब नहीं पता चल रहा, क्यों? क्योंकि इसमें करंट भी है 1 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, उसका तो अभी पता नहीं है. तो यानी इस वक्त अभी क्या हुआ कि अब मुझे पता चल गया. एक क्वेश्चन आया, दैट इज फ्रॉम प्रणय, आई थिंक, इज दैट क्या नोड एनालिसिस सिलेबस में है. एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बट कल जब हम क्लास एंड कर रहे थे तो अक्षित वाज सेइंग कि थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन कर लीजिए. तो मैं एक बेसिक डिस्कशन कर देता हूं, उसके बाद देखना खुद ही कर लोगे. और वैसे ईमानदारी से बताऊं तो नोड एनालिसिस इज नथिंग बट किरचॉफ्स लॉ इनडायरेक्ट. बट ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन कई बार थोड़ा
सिंप्लीफाइड लगता है देखने में, तो देयर इज नो हार्म इन। और कई बार पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, और कोई बात। चलो, यानी 10 वोल्ट इसका पता चल गया, इसका करंट पता नहीं है इसलिए इसका वोल्टेज मुझे नहीं पता, पर ठीक है मैं कुछ एक मेंशन कर देता हूँ। तो मे बी इसको मैं मेंशन करता हूँ एज VA और इसको मेंशन कर देता हूँ एज VB, ठीक है ना, AB। और जो है ये तो 0 वोल्ट हो ही गया, है ना। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे लेते हैं जंक्शन लॉ। सो लेट अस से दिस इज सपोज करंट I, ठीक है, I1, और मान लो इसका करंट I2, और इसका करंट है सपोज I1 प्लस I2, तो हो गई फाइन। तो मैं एक काम करता हूं, इस जंक्शन लॉ पे वो लगाता हूं, तो क्या आएगा, 10 माइनस VA/2 इज दिस करंट I1, क्योंकि मुझे पता है कि जंक्शन लॉ अगर लगाते हैं तो क्या आता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, जो कि I1 प्लस I2 बनेगा, तो यानी उसको I3 के फॉर्म में लिखूंगा बाद में, इज इक्वल टू, लेट्स कॉल इट एज I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे ना, I1 क्या होगा, 10 माइनस VA/2, 10 माइनस VA/2 प्लस I2, है ना, दिस इज I2 हो गया VB माइनस VA/2, ठीक है, ये हो गया I2 इक्वल टू I3 क्या है, VA। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो देखो जो है VA, और ये हो गया 0, तो VA, अब मैं पता है कैसे लिखूंगा, देखो I2 कैसे लिखते हैं, VA माइनस I3 ये वाला इंटू 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो I3 क्या हो गया, VA माइनस 20 बाय 1 ओम, यानी इक्वल टू VA माइनस, सॉरी, VA माइनस I3 प्लस, हाँ ठीक है, यानी VA प्लस 20 बाय 1। ये एक इक्वेशन आ गया VA और VB के टर्म्स, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब आ जाओ ये वाला करंट, ठीक है ना। अब ये जो करंट मैंने लिखा है, जिसको हमने VB माइनस VA/2 कर, ये वाला VB माइनस VA/2, है ना। तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे तो कुछ आएगा करंट, यही वाला जा रहा है जो करंट जा रहा है ना, दैट इज योर I2। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया VA और VB के बीच। अब देखो, अच्छा नहीं, मुझे लगा शायद कोई क्वेश्चन आया। अब देखो, ये जो करंट जा रहा है, ये करंट कितना हो गया ना, I3, है ना, इधर से आया है, और I2 इधर से गया है, तो ये करंट आ रहा है। तो वो करंट मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, VB प्लस 15 बाई 1, तो एक इक्वेशन इससे भी बन जाएगा, है या नहीं, अरे है। तो देयरफॉर अब क्या होगा, बड़े आराम से दो इक्वेशन लिख के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड नोडल एनालिसिस। अच्छा, इससे निकलेगा क्या, इससे सबसे पहले निकलेगा जो है तुम्हारा VA और VB, ठीक है ना, सबसे पहले निकलेगा VA और VB। और एक चीज और बताऊं, ये जो I2 लिखा है इसको भी सिंप्लीफाई पहले से कर सकते हैं, कैसे, I2 जो मैंने VB और VA के टर्म्स में लिखा है, इसका बेनिफिट है कि VB और VA बाद में सॉल्व होके आता है। बट देखो I2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे 0 है, और इस तरीके से, कैसे, मैं देखो अगर मैं चलो उधर लिख देता हूँ, अब ये जो VB माइनस VA/2 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसके टर्म्स में ना, 0 माइनस I2, है ना, और -15 -2I2
इज इक्वल टू वी ए, है ना। तो I2 कितना आ गया, I2 आ गया I2 आ गया माइनस ऑफ, ठीक है ना, VA प्लस 15/3। देख लो, तो यानी इसमें क्या होगा फिर, इन दैट केस यू आर गेटिंग वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ VA ओनली, ठीक है। तो ये जो मैंने VAB माइनस VA/2 लिखा है, इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस VA प्लस 15, ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। So once I do that, you will get only one equation in unknown as VA. तो VA सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर VB निकालना होगा तो मे बी यू कैन यूज दैट दिस थिंग कि 0 से लेके VB तक जाके इक्वेशन लिख के VB भी निकाल सकते हो। मतलब what I'm trying to say is that now you can locate and find out the potential at every point, assuming this as 0. एक बार वो आ जाता है, in that case क्या रहता है, VA एक बार निकल जाए कोई भी वोल्टेज हमें, उसके बाद तो जस्ट इट्स अ फॉर्मेलिटी, हमें you can just easily find out any current, क्योंकि ये वोल्टेज पता चल गया, ये तो पता ही है, ये पता चल गया, VB भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसी में पुट करके। मतलब पहले VA निकाल लो, फिर इसी में ही मान लो VB निकाल लो, तो therefore now you can handle any point of analysis, ठीक है ना। So that is the basics of nodal analysis. What I would possibly do is that मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उससे थोड़ा सा करंट सोर्स का भी रिव्यू हो जाएगा, एंड दैट इज लाइक दिस कि सपोज एक काम करो, सारा रेजिस्टेंस 2 ले लेते हैं जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, और कोई बात। अब मैंने क्या किया, 10 वोल्ट का सेल यहां दे दिया, 20 वोल्ट का सेल यहां दे दिया, और मान लो 30 वोल्ट का सेल यहां दे दिया, ठीक है। ये करंट सोर्स यूज किया, ध्यान रखो, दिस इज अ करंट सोर्स, ओके। नाउ गो अहेड एंड फाइंड आउट द करंट, ओके। यहाँ का करंट, लेट्स कॉल इट एज I1, यहाँ तो पता चल गया यहाँ का करंट, लेट्स कॉल इट एज I2, और यहाँ का करंट लेट्स कॉल इट एज I3। सपोज ये निकालना, तो क्या करेंगे, go ahead and start writing the equations. I hope the question is clear, ठीक है ना। V0, Dhruv, I'm not getting a question what you're asking, Amit. Are you asking the previous question or this new one? Because you're asking if V0, I don't know what you're mentioning as V0. ऊपर से तुमने उसका ना स्पेलिंग मिस्टेक भी किया है, तो लाइक वो डिवाइस भी है, डिराइव भी है, तो व्हाट यू आर राइटिंग आई एम नॉट गेटिंग। एक बार दोबारा मैसेज कर दो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक। एस ए न्यू क्वेश्चन में क्या है,
नहीं ऐसे नहीं है अच्छा तो ये ऐसे नहीं है, वही मैं सोच रहा ऐसे क्या लिख, ये 5 एम्पियर है, सो दिस इज ए करंट सोर्स। अच्छा वो ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे नहीं है, वो 5 एम्पियर, इट्स ए करंट सोर्स। इसके मतलब है कि सर्किट में जो मर्जी कर लो, उस पे तो 5 एम्पियर ही करंट जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। So what you can possibly do is that instead of everybody following different tracks, I mean फिर क्या ना जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. What you can possibly do is that so let's take this as 0 volt. Any point I mean, let's take this as suppose 0 volt. ठीक है, and then go ahead. और इसको VA ले लेते हैं, है ना, इसको VA ले लेता हूँ मैं. ठीक है, इसको VA ले लेता हूँ और इसको VB ले लेता हूँ. ठीक है ना? So just write down the equation, sir. एक और चीज कर लेते हैं, मे बी इज दैट कि करंट इसका I1 ऐसे ले लेता हूं, ये तो है ही है, और इसका ऐसे ले लेता हूं और इसका भी ऐसे ले लेता हूं. ठीक है ना? नाउ यूज द जंक्शंस टू बेसिकली टॉक अबाउट अच्छा हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. तो टू टॉक अबाउट द नोड एनालिसिस, तो नोड तो ये दोनों लेना है और यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया मैंने. अच्छा, द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट ये जो VB है ये क्वेश्चन को आसान कर देता है. क्यों? क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मुझे मालूम, क्योंकि VB + 10 इज इक्वल टू VA, है ना? क्योंकि VB के साथ 10 जोड़ दो भी आ जाए, इसलिए मैं VB को लिखूंगा एज, मैं ऊपर का मिटा दूं थोड़ा सा, मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूं. आई एम गोइंग टू राइट VB एज इक्वल टू VA - 10. ठीक है, तो VB इज नाउ रिटन एज VA - 10. और मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं. तो देखो जो ये वाला का लेता हूं मैं, इन दैट केस इसका करंट क्या होगा, है ना? देखो क्योंकि इसमें I1 गया है, इस पे 5 आया है, ये तो 5 है और ये I1 है, तो देखो यहाँ पे जो जा रहा है वो है I1 + 5, ये जो करंट है. ठीक है, और ये तो मैंने I3 माना है, दिस इज I3. फाइन. अच्छा अब देखो इस जंक्शन पे अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा ना, यहां से करंट आया, ये करंट कितना आएगा ना, I3 - I2, so I1 + 5 is equal to I3, ध्यान रखना, is equal to I3 - I2. ये जंक्शन का होगा. बाकी मैं वोल्टेज के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, देखो ये VA माना मैंने,
VA। तो I1 क्या होगा? I1 होगा VA plus 30/4, यानी VA plus 30/4 plus 5 क्या आ गया इज इक्वल टू I3 minus I2। अब I3 क्या है? देखो I3 है I3 है इसमें कितने एक ही रेजिस्टेंस है ना, तो 0 + 10 - 2I3 10 इस वाले क्या होगा 0 + 10 - 2I3 इज इक्वल टू या ठीक है ना, यानी I3 हो जाएगा 10 - VB/2 है ना, इज इक्वल टू 10 - VB/2 ये हो गया I3 माइनस I2। अब ये I2 है तो I2 कैसे आएगा? VB है ना, VB और ये तो 0 है तो VB - 2I2 + 20 VB - 2I2 + 20 इज इक्वल टू 0 है ना, तो I2 क्या हो जाएगा VB + 20/2 प्लस VB + 20/2। लेकिन VB क्या है? VA - 10 है ना, तो इसको लिख लो यहाँ पे एज VA - 10। नाउ राइट VB as to VA - 10। तो इससे फायदा क्या होगा? वंस यू डू दैट, वंस यू डू दैट तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अक्षित ने आंसर निकाला है। अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वो भी काउंट होगा एज रेजिस्टेंस। जैसे अगर मान लो सपोज ये 10 वोल्ट 2 ओम होता, 10 वोल्ट और 2 ओम होता, इन दैट केस 2 + 2 मिलके 4 हो जाता। तो मैंने वो कहाँ लिखा है? I3 हाँ ये वाला। इन दैट केस ये 2 नहीं होता, फिर ये 4 हो जाता। या मान लो 10 वोल्ट 3 ओम होता, इन दैट केस 3 + 2 मिलके 5 ओम हो जाता, तो दैट वुड आल्सो बी काउंट। अब देखो इससे क्या हो गया ना, अब VB की जगह लिख लो VA - 10, ये तो मैंने पहले ही बताया था। इससे क्या होगा? एक इक्वेशन बन गया VA का, है ना, VA का एक इक्वेशन बन गया, और उससे क्या हुआ ना, जो है VA सॉल्व होके आ जाए। और जरा एक बार देखो, एक बार VA निकल गया तो उसके बाद तो सर्किट का हर चीज समझ लो निकल गया, हर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब कोई भी करंट निकालना होगा तो फटाफट पोटेंशियल डिफरेंस देख के, जैसे ये वाले पार्ट का निकालना है, ये वाला पार्ट का निकालना है, कोई सा पार्ट का निकालना है, तो एक बार VA निकल जाए तो यानी समझ लो कि हर पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। और अगर पोटेंशियल निकल गया तो फिर पोटेंशियल नेट पोटेंशियल डिफरेंस देख के अपॉन रेजिस्टेंस करके कोई भी सेक्शन का करंट बड़े आराम से आ जाएगा। सो यू माइट से कि इससे कोई बेनिफिट भी हुआ क्या? एक्चुअली देखो, मैं उसको बेनिफिट तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ठीक है, किरचॉफ्स लॉ से अगर करते प्रॉपर, इन दैट केस शायद मुझे 2 या 3 लूप इक्वेशन लिखने पड़ते, है या नहीं? तो दैट इज द ओनली प्लस या माइनस पॉइंट एज फार एज नोडल एनालिसिस इज कंसर्न। अब जितने भी नोड होंगे इसी तरीके से हम वोल्टेज के टर्म्स में करंट को लिख के, एंड जैसे ये थोड़ा सा आई एम श्योर किरचॉफ्स लॉ लिखते तो आई एम श्योर थोड़ा सा तुमको लगता कि थोड़ा लंबा खींचता जा रहा, जैसे इसमें थोड़ा फील हुआ होगा कि अरे ये तो एक ही क्वेश्चन में लगभग सॉल्व हुआ, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो VA निकला, अभी करंट एक भी नहीं निकला। लेकिन एक बार VA निकल जाए तो उसके बाद देखो ये 0 वोल्ट है, ये VA मान लो कुछ आ गया, मान लो 15-20 जो भी वोल्टेज है, तो ये एक सेल है 20 वोल्ट सेल और रेजिस्टेंस, फट से करंट आ जाए, तो वो एक बेनिफिट कैसा, ठीक है ना। Likewise, you can now adopt this method in whichever slightly bigger circuits that are there, ठीक है। प्लस से कल हमने वो भी डिस्कस किया था स्टार डेल्टा। तो देखो ज्यादातर क्वेश्चंस ना स्टार डेल्टा से निकल जाते जो हमारे एग्जाम में आए। वो अलग बात है कि हमारे एग्जाम में तो खैर स्टार डेल्टा भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर निकल जाते हैं। और ये भी एक मेथड है नोडल एनालिसिस, तो लाइक ऑल दीस टूल्स, जो बेसिक किरचॉफ्स लॉ वो तो है ही है। So all these tools will now make you sufficiently equipped to handle any circuit at your level. Now there are circuits which are more complex than this, ठीक है ना, but वही बात है कि like उनके लिए अलग methods भी है, number 1, और number 2 is that they actually only become longer in terms of number of equations and in terms of time taken to solve. But अगर degree of complexity देखें या कोई नया concept देखें तो उसमें इतना कुछ नहीं है।
इनफैक्ट आज के दिन में ये जितने भी चिप्स बनता है उसमें सर्किट ही होता है विद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये वो दुनिया भर की चीजें होता है। तो उन सारे सर्किट्स को पहले कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन से सॉल्व किया जाता है। और ये जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है ना, ये सारे मैट्रिक्स बेस्ड होता है। तो वो जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में शायद पढ़ा होगा, या मे बी नहीं पढ़ा होगा, 12th में पढ़ोगे, वैसे तो 10th में थोड़ा बहुत आइडिया होगा शायद। तो वो जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला जो चीज है वो एक्चुअली सिर्फ सॉल्विंग इक्वेशंस में नहीं काम करता है, ये सारे इक्वेशंस इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी वो इक्वली इफेक्टिव है। तो ऑल दिस मैट्रिक्स मेथड इज यूज्ड एक्चुअली फॉर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स, दैट्स एट अ हाई लेवल व्हेन यू इफ यू टेक अप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। ठीक है ना? चलो, आई थिंक दैट्स व्हाट we will end here. So like इससे VA निकाल के and then you go ahead. So that part you can do yourself. Fine. So let's put an end or call it off as far as this particular chapter is concerned. ठीक है ना? अब हम लोग जो है हम लोग करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का इनॉग्रेशन। ठीक है ना? तो याद करके देखो, मैंने एक चीज बताया था इज दैट कि पहले, तो when I say पहले, it means around let's say 200 years back, it was believed कि जो scientific forces है उसमें gravitational force अलग कैटेगरी है, तो अलग चेम्बर कहा जाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग चेम्बर कहा जाता था, और मैग्नेटिक फोर्स अलग कहा जाता था। लेकिन ये वाला जो चेम्बर है ये तो अब टूट गया है ना? वो इसलिए टूट गया है क्योंकि अराउंड 200 years back, 200 ही होगा ना, अराउंड 200, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं, बट अराउंड 200 years होगा करीब। अराउंड 200 years back, Oersted as he was doing some experiment on potentiometer, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड से, सॉरी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर असर पड़ता है। अब देखो, करंट तो चार्ज रिलेटेड फिनोमेना, और इन्फ्लुएंस किस चीज को कर रहा है? मैग्नेट को कर रहा है। सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, थोड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। I have shared you the story in the beginning of the course, you remember, एकदम फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई ये चेंबर कैसे टूटा है ना। तो ही डिस्कवर्ड कि जैसे इस सर्किट को ऑन करते हैं तो जो कंपास है उसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ना होकर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, कुछ टिल्ट हो जाता है। फिर जैसे सर्किट को ऑफ कर दो वापस नॉर्थ साउथ, यानी उस सर्किट के ऑन ऑफ के साथ इसके मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर लिंक, जबकि सर्किट तो प्योरली एक चार्ज रिलेटेड फिनोमेना, यानी चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डोमेन है ना, और मैग्नेटिज्म का डोमेन मैग्नेट तो अलग है, लेकिन अब ये आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी ये चेंबर अब तो टूट गया है। तो दिस चेंबर नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। ठीक है ना? तो इसलिए आज के दिन में जो है इनको कंबाइन करके एक नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ओवरऑल सब्जेक्ट नेम। ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द इन्फ्लुएंस। जो मैंने एग्जांपल बताया था ओर्स्टेड का, वो था इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ऑन मैग्नेट, और हम लोग शुरू करेंगे इसका थोड़ा उल्टे से, एंड दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ B is the symbol used for magnetic field। ठीक है ना? ये ऑन चार्ज। अब देखो, चार्ज मैंने तो बोला, लेकिन तुम कोई भी बुक पढ़ोगे देखना चार्ज नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका जो हेडिंग होगा देखना उसका होगा मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज। मैं भी हेडिंग इसके ऐसे कर देता हूँ, बट इसलिए मैंने थोड़ा गैप छोड़ा था। इन्फ्लुएंस ऑफ बी ऑन चार्ज ना लिख के यहाँ लिखा था कि बाद में मूविंग लिखूंगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझो, इनिशियली हु डिस्कवर्ड और हु ब्रोक दिस वॉल? ओर्स्टेड। लेकिन देखना किताब में ओर्स्टेड के नाम से कोई लॉ नहीं। वो इसलिए देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब डिस्कवरी हुआ, चलो डिस्कवरी तो बहुत पहले हुआ था, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब स्टडी हुआ तो बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि हर चीज लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज के हिसाब से, जैसे इस एक चार्ज के वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा ना, लाइन ज्वाइन कर लो तो फोर्स का डायरेक्शन या तो उधर होगा या तो उधर होगा, तो इट्स इजी टू हैंडल। ग्रेविटेशन में भी इट्स इजी टू हैंडल। व्हाई? अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो ग्रेविटी, अगर कोई और जगह पे इन्फ्लुएंस जानना चाहते हो तो लाइन ज्वाइनिंग या लाइन ज्वाइनिंग, इट्स लाइक दैट, या तो अवे या तो टुवर्ड्स। लेकिन मैग्नेटिज्म में आके साइंटिस्ट अटक, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक फिनोमेना इफ यू लुक एट हिस्टोरिकली, मोस्ट ऑफ
जिसने डिस्कवर किया, देखना उसने उसको लॉ तक भी पहुंचाया। लॉ मतलब जिस उसके पर्टेनिंग जो भी फॉर्मूला शॉर्मूला जो भी बना। लेकिन ये एक ऐसे एरिया था कि डिस्कवर तो क्या पोस्टेड ने, लेकिन कोई लॉ नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर था। वो तो फॉर्मूला जब लिखूंगा तब खुद ही लग जाएगा, और अगर ऑलरेडी मालूम है तो यू नो इट ऑलरेडी। फॉर्मूला इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। अब देखो प्रॉब्लम समझो, मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना देखता हूं तो एक चार्ज यहां पे रखो तो एक और चार्ज रखो तो तुरंत ये चार्ज रिपेल्ड हो जाता है, सो सिंपल। लेकिन मैग्नेटिज्म ऐसा नहीं होता। अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज को सपोज यहां रख दिया, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एक चार्ज को उसके ठीक लाइन पे रख दिया, समझो ना, ओरिएंटेशन देखिए, ये ओरिएंटेशन समझ जाओ, लाइक दिस। उस चार्ज को सिर्फ रख के छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं होगा, वो चार्ज वहीं रह जाएगा, अनलेस सम अदर फोर्सेस आल्सो एक्टिंग लाइक ग्रेविटी होगा तो नीचे गिर जाएगा, वो एक अलग बात। पर अगर मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में करोगे, इन दैट केस क्या होगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे रख के छोड़ दो, नथिंग हैपेंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में चार्ज पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी चार्ज को ऐसे ना करे, रख के ना छोड़ो और फिर ऐसे कर दो यूं, तो पता चला मुड़ गया। अब मुड़ता कब है? जब फोर्स एक्ट कर। लेकिन कई बार नहीं भी मुड़ रहा। जैसे अगर चार्ज को यूं धक्का मार दो तो देखना सीधा चला, तो कई बार सीधा भी जा रहा है, कई बार मुड़ भी जा रहा है। और अगर ऐसे चार्ज को रख के छोड़ दो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर स्लाइटली फनी इन द सेंस कि इसके पहले इस तरीके के फोर्स के बिहेवियर का पैटर्न साइंटिस्टों ने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, पहली बार। इस वजह से ऑर्स्टेड भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन लॉ की तरह कोई सम अप नहीं कर पाए। कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट बताया था कि इसमें ये आ रहा है, उसमें ऐसे हो रहा है, उसमें वैसे हो रहा है, बट ही कुड नॉट सम इट अप बाय अ लॉ। दैट्स पार्टली आल्सो बिकॉज वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन तो नहीं कहूंगा, बट वेक्टर का जो प्रोलिफिक यूज है इन फिजिक्स, वो एक्चुअली उसी रेंज में स्टार्ट हुआ ओर्स्टेड और उस जमाने में। तो इवन साइंटिस्ट आल्सो, द गुड साइंटिस्ट एट दैट टाइम also were not so much trained to think in vector terms. They were more thinking in terms of science, but not in terms of vector. तो therefore वो एक नया इरा था, तो he could not sum up it. But anyway, आज तो मुझे पता है, मतलब मुझे क्या, साइंटिस्टों को, कि मूविंग चार्ज पे असर होता है, और जो फोर्स है उसका नाम दिया गया as लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज ने बोला कि देखो एक चार्ज को अगर हम कहीं रखते हैं तो उसके ऊपर दो इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो जो नेट इन्फ्लुएंस होगा, नेट फोर्स होगा ऑन अ चार्ज, तो F इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक है तो QE, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो QB क्रॉस B। देखो Q इंटू B क्रॉस B। अब इसी चक्कर में ये जो दिख रहा है ना V क्रॉस B, इसी चक्कर में इनिशियली साइंटिस्ट उसको हैंडल नहीं कर पाए, वो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाए, उनको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे फॉर्मूला के अंदर पाते, ठीक है ना। दैट वाज द थिंग। तो चलो कोई नहीं, आज तो हमें पता है। अच्छा, इसके कंसीक्वेंस थोड़ा समझा जाए, इसके जो है कंसीक्वेंस थोड़ा सा समझा जाए। नंबर वन इज दैट, अच्छा ये हो गया अगर दोनों फील्ड मौजूद है, तो ओनली इन मैग्नेटिज्म होगा, तो इन दैट केस दिस इज द मैग्नेटिक पार्ट, है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पार्ट, एंड ऑब्वियसली दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पार्ट। अब सपोज एक काम करो, इलेक्ट्रिक फोर्स को छोड़ दे रहना, इलेक्ट्रिक फोर्स का असर क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स यू ऑलरेडी नो। तो नाउ लेट्स लुक एट चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली भी लिख देता हूं, मीनिंग कि कोई और फोर्स नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फोर्स। पहली बात तो चार्ज V0 इंप्लाइज फोर्स 0, यानी अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह जाएंगे। ये कुछ मैसेज आए हुए 55, ये क्या है, कुछ आंसर बता रहे हो क्या, इट्स सम अदर कमेंट। तो प्रणय ने VA की वैल्यू पूछी थी। अच्छा, मैंने सॉल्व तो नहीं किया था, इफ यू हैव सॉल्व्ड इट मे बी यू कैन जस्ट गिव इट। तो देख लो, अगर 55 है तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
मैं तो मेथड इसलिए बता दिया क्योंकि देखो ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तो लाइक देयर वाज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। So you must have found out V and then must have got the answer. मैंने इसलिए इसको वहीं छोड़ दिया, तो लाइक आई लेट इट डू। अच्छा, V is equal to 0 तो फोर्स 0। उसके बाद एक चीज और बताओ, बॉडी ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, मैं अब उल्टा करता हूं, अ चार्ज विथ V0 is equal to suppose U continues with U। इसके लिए क्या कंडीशन, ये कब होगा? चार्ज विथ V0 इक्वल टू U, ये कंटिन्यूस विथ U, ये कब होगा? इसका क्या कंडीशन है? बोलो, ये कब होगा? When will this happen? And that is what? A charge with initial velocity V0 continues with that V0. Okay, ठीक है, Anirudh has given one answer. ठीक है, Rohan has also given the same answer. Exactly, yes. चलो ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट। इन द सेंस कि इसमें दो टाइप के कंडीशन होगा, एक है पैरेलल और एक है एंटी पैरेलल। आई डोंट नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो तुम लोगों ने पैरेलल के अंदर ही दोनों को इंक्लूड कर लिया था, दैट्स व्हाई यू गिव ओनली वन आंसर। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। तो लेकिन किसी ने थीटा लिखा था, तो थीटा का फिर दो केस हो जाएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब समझो साइंटिस्टों को क्या परेशानी, चार्ज रेस्ट पे रखो, कोई असर नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो दो केस है इसमें भी कोई असर नहीं हो रहा, और इसके अलावा असर हो रहा है। तो साइंटिस्टों को समझ नहीं कि क्या फोर्स है, मतलब पता नहीं क्या इसका स्वरूप है या जो भी इसका रूप है। तो साइंटिस्ट भी इनिशियली थोड़ा फ्लमक्स्ड हो गए, बट एनीवे इट टुक सम टाइम टू सेटल डाउन एंड देन फाइनली द शेप वाज गिवन बाय लॉरेंज। ओके, अब देखो थर्ड केस, if V is perpendicular to B, now there's a thing, and that is, remember, force is always perpendicular to velocity. क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट है, V क्रॉस B, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। Therefore, F dot V will be always equal to 0। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑलवेज की बात कर रहा हूँ, हाँ ये हमेशा नहीं होगा, है ना। तो चलो एक काम करो, ये चीज हटाई देता हूँ। V is perpendicular to B एक बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये इन जनरल बता रहा हूँ। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बट दिस इज आल्सो इक्वल टू P, P instantaneous to be more precise. Therefore power of magnetic force is always 0, यानी work done by magnetic force is always equal to 0। ये मैग्नेटिक फोर्स लिखा है, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अकेला, दोबारा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अकेला वेलोसिटी बदल सकता है, स्पीड नहीं बदल पाए। वेलोसिटी तो इसलिए क्योंकि डायरेक्शन बदल सकता है, हमेशा नहीं होगा, इसमें तो नहीं बदला, कंटिन्यूस तो हमेशा नहीं बदलेगा, बट जब बदलेंगे तो इन दैट केस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकते हैं, लेकिन स्पीड नहीं बदल सकता, दैट इज द पॉइंट। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर magnetic force therefore magnetic force alone cannot, वेलोसिटी बदल सकता है क्योंकि फोर्स है, तो आफ्टर ऑल तो वेलोसिटी वेक्टर तो बदल ही सकता है, लेकिन स्पीड नहीं बदलेगा। अब हम एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं वो जो मैं पहले लिख रहा था हेडिंग, फोर्थ एंड दैट इज if velocity is let's say perpendicular to magnetic, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो velocity is perpendicular to magnetic field, तो इन दैट केस वो क्या होगा,
लेट अस से ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये सपोज वेलोसिटी, चार्ज पॉजिटिव है, वेलोसिटी वेक्टर ये। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर वाला केस मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो लेट्स लुक एट नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऐसे में पता क्या होगा, जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, देखो वेलोसिटी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस बी, ये देखो उससे क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर। यानी थोड़ा खुद सोच के देखो, एक ऐसे पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दिया था, अगर उसको ऐसे फोर्स लग जाए तो क्या होगा, ये देखो। लेकिन जैसे यूं मुड़ जाएगा थोड़ा सा, तो देखो फिर v क्रॉस b फोर्स ऐसे, फिर फोर्स ऐसे, फिर अब वेलोसिटी ऐसे हो गया, फिर v क्रॉस b फोर्स इस थंब के अलोंग होगा तो फोर्स ऐसे आ गया, फिर v क्रॉस b थंब के अलोंग, तो देखो ऐसे v क्रॉस b थंब के अलोंग, तो यानी ऐसे, यानी देख रहा हूं यूं ऐसे मुड़ गया। और हर मोमेंट पे जो भी उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस वक्त है, फोर्स देखा होगा उसके ठीक परपेंडिकुलर। अब दैट इज व्हाट अ सर्कुलर मोशन इज ऑल अबाउट, है या नहीं। अगर मान लो एक फोर्स कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, दैट इज व्हाट लीड्स टू अ सर्कल। सो देयरफॉर दिस चार्ज विल मूव इन अ सर्कल। ठीक है, कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होने के वजह से। दूसरी बात, सर्कल का स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं पता, बट लेट्स से द सर्कल इज सपोज ऑफ रेडियस r, और ये v हो गया और चार्ज का मास सपोज m। तो इन दैट केस somebody has to provide the centripetal force, जैसे नॉर्मली होता है। तो हम क्या लिखेंगे, m v स्क्वायर बाय r, ये वाला इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा ना, अगर चार्ज q है, लेट्स से वेलोसिटी v है, तो q v b, और इस केस में क्योंकि परपेंडिकुलर है तो sin 90, क्योंकि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, जो मैग्नीट्यूड है वो तो q v b sin थीटा है ना। तो इस केस में क्या है ना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो sin थीटा 90 करके 0 हो गया, तो यानी v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू q v b, यानी उससे क्या होगा, r आ गया, एक v कैंसिल हो गया, mv बाय q, रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी आ गया। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर अगर होगा तो दैट केस क्या होगा, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो दैट केस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये तो एक अलग चीज डिस्कस हुआ था। तो ये रेडियस आ गया। अच्छा, रेडियस आ गया तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, सर्कल का सर्कमफरेंस अपॉन स्पीड। तो 2 पाई r के जगह mv बाय qp अपॉन स्पीड v, तो v कैंसिल हो गया। इन दैट केस क्या होगा, डॉट 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 लगा के लिख देता हूं, 2 पाई m अब ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो है, ये जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, इस पे थोड़ा सा इश्यूज है। ये जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, इस पे थोड़ा सा इश्यू है। अब वो समझो, दिस हैज नथिंग टू डू विद वेलोसिटी, यानी ये जो टाइम पीरियड आया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, और दैट्स लिटिल सरप्राइजिंग। इसमें तो वेलोसिटी चाहे तुम 1 मीटर पर सेकंड रखो, 200 मीटर पर सेकंड रखो, या इवन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रखो, कितना रेंज बताया मैंने, 1 मीटर पर सेकंड रखो, 100 मीटर पर सेकंड रखो, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रखो, सब में सेम टाइम पीरियड होगा। क्यों, वेलोसिटी तो है ही। यानी t इंटरेस्टिंगली इज टर्निंग आउट टू बी, ठीक है ना, t इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो कहां 1 सेंटीमीटर, कहां 1 मीटर पर सेकंड, और कहां 100 मीटर पर सेकंड, सब में टाइम पीरियड सेम। ये कैसे हो सकता है, हाउ टू एक्सप्लेन दैट। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम ध्रुव ओनली, दैट इज ये w कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ।
अच्छा मैं समझ गया, वो एक्चुअली मैं जो कंक्लूड कर रहा था कि इसमें पावर मैग्नेटिक फोर्स का जीरो, एक्चुअली देखो सिर्फ पावर जीरो का मतलब मैं समझ गया, पावर जीरो मतलब यू माइट से कि हो सकता है कि 10 जूल ऑफ वर्क डन है और वो 10 10 10 10 10 रह गया, तो पावर तो dw dt है, तो dw को जीरो कर दिया, बिल्कुल बात सही है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा और बेसिक पे चले जाओ, ये थोड़ा ऊपर ऊपर हमने देखा था पावर के टर्म्स, थोड़ा बेसिक पे चले जाओ। एवरी इंस्टेंट ऑफ मोशन अगर देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो देखो ऐसे टेंजेंशियल, और जिसका फोर्स होगा वो क्या होगा, देखो v क्रॉस b, देखो फोर्स है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, लेकिन वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है दैट मींस फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ds, so therefore इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं that force is also perpendicular to ds। क्यों? क्योंकि फोर्स यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ds also, तो यानी not only f dot v is zero but f dot ds भी जीरो आएगा, है या नहीं? therefore f dot ds भी इस केस में इक्वल टू जीरो आएंगे। तो पावर जीरो इसलिए नहीं है कि वर्क डन कांस्टेंट है, पावर जीरो इसलिए क्योंकि वर्क डन हो ही नहीं रहा है ना, इवन वर्क डन भी क्या है कि बन ही नहीं रहा, दैट इज द रीजन। सो देयरफॉर व्हेन आई से दिस, यानी इसलिए मैंने वर्क डन को भी इसलिए मैंने जीरो कर दिया, ठीक है ना। चलो कंटिन्यू विद दिस, हाउ टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट t इज इंडिपेंडेंट ऑफ v इवन दो व्हेन आई एम पुटिंग v इन वेरियस रेंजेस, सेंटीमीटर पर सेकंड से लेके मीटर पर सेकंड से लेके 1000 मीटर पर सेकंड, दैट्स अ बिग रेंज, ये टाइम पीरियड होता है। हाउ डू एक्सप्लेन दैट? Dhairya says you are actually calculating limiting value. 0 by 0 still remains not defined. I'm not getting what exactly you are asking. Sir, I am not asking anything. हाँ? सर मैं कुछ नहीं पूछ रहा, ऊपर अनिरुद्ध ने कुछ लिखा था वो बता रहा था। अच्छा अच्छा, उसमें कोई कमेंट किया था? अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, मुझे लगा शायद किसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया होगा। चलो एनीवे, तो अच्छा रोहन निजावन ने कुछ कमेंट पे लिखा था कि पावर कट हो गया था, कई बार तो मेरा कुछ छूट ही जाता। Anirudh says कि R is equal to 0, so you don't really know either. नहीं, I think मैंने जो सवाल पूछा था उसका शायद कार्तिक ने आंसर दिया है, तो I think that was what he was wanting to say। तो इतना मैसेज हो गया ना कि मतलब मैं ट्रैक लूज कर गया, तो लेट मी गिव द एक्सप्लेनेशन। आई थिंक एक दो एक्सप्लेनेशन शायद सही आया था और इतने सारे आ गया कि मे बी आई वोंट बी एबल टू रीड देम ऑल नाउ, तो चलो कोई नहीं। T is independent of V का एक्सप्लेनेशन क्या है कि ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि मैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पे जाता हूं तो मुझे 10 सेकंड लगता है, मैं 1 किलोमीटर पर सेकंड जाता हूं तो भी मुझे 10 सेकंड लगता है, ये कैसे हो सकता है? अब देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो तब है ना जब हम सेम डिस्टेंस कवर करें, है या नहीं? जैसे अगर मान लो आज मैंने अपने गाड़ी का स्पीड डबल कर दी और मान लो जो डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस भी डबल है, तो इट हार्डली मैटर्स, उतना ही रहेगा टाइम। तो रोज 5 किलोमीटर जाता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, आज 10 किलोमीटर जा रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, कल को 50 किलोमीटर जाऊंगा 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये सारे एग्जांपल्स में टाइम उतना ही लगने वाला, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनल टू द स्पीड डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ, और वही यहाँ पे भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस आया है ना वो भी तो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, दिस रेडियस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जब मैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड करूंगा तो ट्रैक छोटा सा होगा, जब मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड करूंगा तो ट्रैक उससे बड़ा, फिर 5 सेंटीमीटर करूंगा तो उसका 5 गुना ट्रैक होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 5 सेंटीमीटर वाले ट्रैक 5 सेकंड वाला ट्रैक 5 गुना ज्यादा होगा। तो देखो जितना वेलोसिटी बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ टाइम्स, उतना ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में रेडियस यानी ट्रैक का लेंथ सर्कमफरेंस वो भी बढ़ रहा है, and that is the reason why the time period is independent of v, even though I am varying v to a great extent। मैं v को 1000 गुना कर देता हूँ तो भी उतना ही टाइम, क्योंकि फिर उसका डिस्टेंस भी 1000 गुना हो जाएगा, पूरा ऐसे कवर करके फिर आए, तो दैट्स व्हाई इट न्यूट्रलाइजेस, ठीक है ना। अच्छा, as it's not doing any work, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी remains same, half mv square, तो that is not going to change, है या नहीं? तो ये हो गया जो है
तो ये जो है दैट इज योर discussion on a circle. Now I will ask you a simple question कि suppose एक काम करो, या उससे पहले ना एक वेलोसिटी को लेके कुछ मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। सपोज ये एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसका वेलोसिटी ये है और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, 5-6 मे भी 6 जगह होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन दिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। नाउ कमेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ अननोन क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका फोर्स इधर है। यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर। ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसका जो फोर्स है वो डॉट है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अगेन वेलोसिटी वेक्टर निकाल। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो फोर्स है वो डॉट है, क्रॉस है। चलो ये फोर्स नहीं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, फोर्स ऐसे है। ठीक है, यह काम करो फॉर ए चेंज। ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और लास्ट क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है ना, आई हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक। 6 क्वेश्चन, 3 4 5 6। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन तो वो v क्रॉस b से आएगा, तो दैट ओरिएंटेशन यू कैन सेट फॉर योरसेल्फ। ठीक है ना। हाँ, रोहन बिल्कुल बिल्कुल जो पूछ रहे हो एकदम सही, खुद ही पूछ के खुद ही आंसर भी एकदम सही दे दिया। एंड दैट इज कि अगर मान लो एंगल पे होगा, तो वो लास्ट टॉपिक वही है। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक किया ना 4, उसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट टॉपिक वही है कि वेलोसिटी ना पैरेलल, ना एंटी पैरेलल, ना स्टेशनरी, और ना ही परपेंडिकुलर। इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो इन दैट केस क्या कंक्लूजन होगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। नहीं, बट देखो जय, व्हाट यू आर सेइंग इज कि एंटी पैरेलल का इंटरप्रिटेशन दिया है कुछ। देखो एंटी पैरेलल या पैरेलल अगर होगा और मैं पूछता हूँ जबरदस्ती रेडियस बताओ, तो ठीक है, रेडियस इनफाइनाइट है नहीं। क्यों भाई, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसका रेडियस और कर्वेचर क्या माना जाता है, इनफाइनाइट। सर ऐसे में टाइम पीरियड इनफाइनाइट, नो इश्यूज। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे। सर वो अनिरुद्ध और धैर्य v=0 पे डिस्कशन कर रहे थे, उसके लिए बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बस बस ठीक है, उसको रोक दो। अब इस पे फोकस करो। पहले वाले में फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, एक करके करते हैं। पहले वाले पे फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ओके। धैर्य ने आउट इनटू इनटू ये सब करके दिया है। नहीं, मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के हिसाब से चाह रहा था, और एक आध का ना डायरेक्शन उतना सर्टेनिटी के साथ नहीं बताया जा सकता। एक आध में ना देखो, अगर v और b दिया गया, थोड़ा ध्यान से सुनो, v और b अगर दिया हुआ है तो मैं फोर्स का डायरेक्शन सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ। बाकियों में जैसे इस केस में मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, ध्यान रखना ये वाला। मैं एक वो दे सकता हूं कि ऐसे होगा, बट ये डायरेक्शन होगा ऐसे नहीं बता सकता।
जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये इस तरीके से कुछ होगा ऐसे, तो दैट कुड आल्सो बी एन आंसर, ध्यान रखना। तो पहले वाले में तो ठीक है, पहले वाला तो आसान है, दैट इज के कैप हमें, ठीक है ना। तो पहले वाले का तो आंसर आ गया ठीक है। देखो वी क्रॉस बी, वी है ना, क्रॉस बी, ये देखो फोर्स का डायरेक्शन यानी के कैप, इजंट इट। वैसे आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि कौन सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, किसी को रैंडमली पकड़ते हैं। सेकंड का आंसर किससे पूछा जाए? प्रत्येक सेकंड का आंसर दो जरा, देखते हैं जागे भी है या नहीं। प्रत्येक सेकंड का आंसर दो, क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? प्रत्येक सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो मैग्नेटिक फील्ड। आप देख रहे हो? ये ऑनलाइन मीडियम का बड़ा मुश्किल है, यू कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग एट द अदर एंड। क्लास में तो एटलीस्ट पता चल जाता था, आप देखो प्रत्यक्ष कितना एक्टिव है, इससे पता चल। हाँ जी प्रत्यक्ष, चलो एक तो पकड़ा गया, दूसरा करते हैं आज, और किसको पकड़े? अच्छा तन्मय, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। अब तो मुझे लग रहा है एक एक करके वो आज पकड़ेंगे शायद। मतलब कौन जो है ऑन करके आराम से हाथ पैर फैला के, है ना, घर के मस्ती में, प्रोबेबली बेड के ऊपर, मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। हाँ जय गॉड, यू आर राइट। कई क्वेश्चन में ना स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आएगा, रेंज आएगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके है ना, ठीक है ना। चलो और किसको पकड़े आज? यानी तन्मय, प्रत्यक्ष, चलो वंशिका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मतलब जो 2 4 8 10 एक्टिव है उनका तो मैसेजेस आ जाता है, बट बाकी मैसेजेस नहीं करते तो क्या करते हैं थोड़ा सा जानना जरूरी है कई बार। यस वंशिका, आज लग रहा है मैं रैंडम पिक सब उन्हीं को कर पा रहा हूँ जो कि आराम से ऑन करके। चलो वंशिका हैज गिवन एन आंसर, चलो गुड, एटलीस्ट यू आर एक्टिव, पता चल गया। राइट और रॉन्ग अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कार्तिक ने भी दिया है, वेदांता, अच्छा वेदांता ऑलरेडी दिया, अच्छा नहीं, वेदांता सेकंड क्वेश्चन का आंसर। वेदांता सेकंड क्वेश्चन का आंसर। स्टिल थिंकिंग, चलो ठीक है थिंकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध और देखते हैं। पृथ्वी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तन्मय सेज यू आर नॉट ऑडिबल। क्यों तन्मय ऑडिबल क्यों नहीं है? यू आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, ऐसा कुछ है क्या, कोई प्रॉब्लम है? ओह आज तो टाइम बहुत हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा बोर्ड नॉट क्लियर। अब वैसे आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरनेट एट योर एंड, क्योंकि मेरे एंड पे तो अभी मैंने नया इंटरनेट लगा दिया तो फास्ट हो गया है। चलो एनीवे अभी आज तो आई थिंक लेट्स वाइंड इट अप हियर ओनली, आई डिडंट नो द टाइम है, ठीक है ना। ओ अभी तुम्हारा लॉन्च कर रहे हैं, चलो ठीक है, आई थिंक लेट्स वाइंड अप हियर ओनली बिकॉज़ आई जस्ट डिडंट हैव दैट। अच्छा ऑन योर एंड इट्स अ प्रॉब्लम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो लाइक आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल इसके इन क्वेश्चंस को और डिस्कस करें, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चंस तो याद नहीं रहेगा तो लाइक मे बी कल फिर से कोई रैंडमली दे दूंगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।
थैंक यू सर। Thank you. So, sir. Okay, thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, sir,